Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. So today we discuss about the module number 2, that is name is HTML5 and responsive web design with CSS3. So your chapter number under which the chapter number 4 and chapter number 5. So today we discuss about the chapter number 4 and that is the name of HTML5 under which the different topics are there. Okay, the first topic is nothing as your fundamental syntax and semantics. That is the first topic of your the chapter number 4 HTML5 under that. Okay, so today we start with the topic that name is fundamental syntax and semantic. Okay, so basically in HTML5, okay, what are the fundamental we have to use? That is nothing as your fundamental syntax. So already we did some practicals using the HTML5 template. So most of the students know about that the what are the basic fundamentals are there already we are used. Okay, but according to topic we have to discuss again that the what are the fundamentals. Okay, so first fundamental is nothing as your what a doc type. Okay, so what mean by the doc type? Doc type is nothing as a document definitions or document type definitions that tell about the browsers which version we have to use. Okay, so it means what you take the support doc type on HTML template. So that is meaning of what we are use right now the current HTML 5.0 we use on the ब्राउजर्स. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. वो बोल रहा है कि अगर मैं डॉक टाइप HTML लेता हूँ वहाँ पे HTML टेम्पलेट पे, तो बोलता है कि आपका करंट ब्राउज़र पे जो भी कुछ वर्जन चल रहा है वो HTML 5.0 का चल रहा है. ओके, सो बिफोर दैट अर्लियर वी हैव टू गिव द वर्जन नेम in document type. Okay, it means what document type space HTML 4.0 3.0. So that we have to need the put their version on there and then the browser know about that what kind of the version we have to use. But in HTML5 we just only type the doc type space HTML. Okay, so practically we discuss that the point. Okay, so suppose here we take the HTML5 template. Already we take the HTML5 template in earlier videos. So okay, I click here. Okay, and that type what we have to declare. We have declare here HTML5 5.0. Okay, here we are not declare any 5.0. Okay, so by default that they consider the doc type is what HTML 5.0. Okay, so यहाँ पे मुझे 5.0 वर्जन टाइप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो कंसिडर कर लेता है. ओके, देन सेकंड इज व्हाट second fundamental syntax is nothing as your character set. What mean by the character set? So before we go into the character set, we have to know that how the communications to be happen between the browsers and servers over the network. So you know very well that time we have to set the request and response message through the HTTP protocol. But that is the communication using request and response, but using which language? So properly we use suppose the English language. So that English language we have to use the characters on there, and that character we have to convert into the binary language, and that binary language they know very well your machines or your computers. Okay, so that time what we know that the English language or that English language we convert into the ASCII characters or ASCII Unicode format. Okay, suppose डायग्राम देख के हम भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कि मेरे पास एक सपोज कोई मैंने लिया सपोज यहाँ पे एक ब्राउज़र ले लिया यहाँ पे और एक यहाँ पे एक सर्वर ले लिया. ओके, दिस वन योर ब्राउज़र and this one your server. That browser which is made using HTML language. Okay, I send the request here and that is we call as the request, and I got the response from here. Okay, the response there. Okay, but that request and response in the English language only. Okay, so that both the English language we use here what the ASCII character.
Okay, so that what we have to use the ASCII character. So we come to here ASCII character. It means what? They use the 0 to 255 character here, and that the characters here, the character they convert into the Unicode format. Okay, so that is know very well. If suppose unfortunately what happened, this is your browser again and this is your server. Okay, I send the request here properly in English language and I got the response that particular applications or HTML page using a different language like your Hindi, okay, or your Chinese language. Okay, it means what? I sent the request in English language, but I got the response respectively application using a different language. At that time, that is the browser. They not get properly the response, not get the response. So at that time, we have to set the character set in HTML5. Okay, so how we set the character set on there? Suppose I take here the meta tag, here meta tag, and that meta tag or element, we have the attribute that is name is a character set. Okay, equal to that is we call as a UTF-8. So the question is right now, what mean by the UTF? UTF is nothing as what? Uniform transfer format 8-bit. Okay, so right now that 8-bit we have the 11,12,000 064, that is the characters we have convert into the Unicode format like your ASCII. Suppose ASCII we have the A character we have convert into the Unicode. Suppose 100, that is a Unicode. Okay, so for A character. Okay, so in that way what? In ASCII we have to 0 to 255, but in UTF-8 how many? 11,12,064 character, and that character we convert into that Unicode format. Okay, so this is mean what? We have the multiple character and we convert into the Unicode. Whatever the response we got using, we can convert into that related coding format. Okay, so that is the meaning of that character set. So instead of 8 we have the 16, we have the 32, in that way the bits we have. Okay, so this is meaning of the character set. जैसे कि अगर मुझे मालूम है कि मैं जो भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ नॉर्मल इंग्लिश से कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि समटाइम्स मैं रिस्पॉन्स कोई ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट देता हूँ, तो ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट जब मैं देता हूँ तो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. ओके, और डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं, बट दैट द ब्राउज़र दे डजंट नो अबाउट दैट, और दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट नो अबाउट दैट द कैरेक्टर्स. तो वो रिस्पॉन्स देते हैं तो वो उसी लैंग्वेज में देते हैं, बट यूनिकोड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसे प्रॉपरली हमारे ASCII कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले कर देंगे. अभी नॉर्मली अगर आप करते हैं HTML5 को विदाउट मेटा टैग, तो वहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको दिखेगा कि जो भी कुछ आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ब्राउज़र के ऊपर वो दिखता है. तो नॉर्मली क्या हो गया कि जितने भी यूनिकोड हैं अभी सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है मेटा टैग. बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूँ या नया अलग ब्राउज़र बनाता हूँ तो उस पे वहाँ पे वो ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करेगा. तो एट दैट टाइम यू हैव टू बिल्ड दैट द मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नए ऑपरेटिंग सिस्टम और नए ब्राउज़र के ऊपर हमेशा आपको उस ब्राउज़र के ऊपर मेटा टैग और मेटा कैरेक्टर सेट वहाँ पे डालना पड़ेगा. ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेना ही है वो. यस. Next, your fundamental syntax is nothing as you're optimizing the script and link tag. So already you have to know that the script tag and link tag. Okay, so where we use in between the head tag, and that time we have to use, or whenever we use the script tag, we use the script tag as well as with the 3 attribute. Like suppose whenever you use the script tag, script. Okay,
So we use that time the relationship, okay, then source, and that is your type. Okay, so what we use the 3 tag for this. So instead of that the script tag in HTML5, we use only the script source are there. If you are source, then you can use the source. Okay, so that is the HTML5 we have to give the feature. Okay, then we use the link tag. Again the link tag the same, the link what relationship here, then the source, and then what your type. So instead of that, what we take the link tag here, and what we take only the link equal to source here. So that is the one attribute you have to take. Again that the feature we have in a that HTML5. ओके, मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया कि इतने सारे लेने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट टैग बोल दूंगा, उसके बाद उसका जो भी एट्रीब्यूट रहेगा सोर्स वो डाल दूंगा दोनों टैग के बीच में. ओके, तो नेक्स्ट you're that the adding document structures with the HTML new elements. So what are the adding new elements in the HTML5? Okay, so first that is nothing as your header. They given the presentation what they tell, first we discuss. Define your document structures with the new header, footer, nav, aside, sections and article elements. So instead of that, what the some elements we have skipped and we introduce the new element, that is a new structure element that we called as a header, footer, nav, aside, sections and articles. मतलब HTML4 में जो कुछ फीचर्स थे, कुछ एलिमेंट्स, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को स्किप कर दिया और उसके जगह पे वहाँ पे न्यू एलिमेंट्स और टैग वहाँ ने इंट्रोड्यूस कर दिए, जो कि मैंने बताया अभी, हेडर, फुटर और नया असाइड, सेक्शंस एंड आर्टिकल्स. ओके, हम उसे बोलेंगे सिमेंटिक भी बोल सकते हैं. उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो भी न्यू एलिमेंट्स है उनको सिमेंटिक्स वहाँ पे बोल सकते हैं. तो सिमेंटिक्स कौन से हैं, ओके, और हमने उसे कैसे यूज़ किया उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, एग्जांपल लिया तो वो समझ में आएगा आपको कि एग्जैक्टली हमने कैसे पुराने वाले थे और वहाँ पे न्यू वाले कैसे एलिमेंट्स लिए हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर द कंसेप्ट अबाउट दिस सिमेंटिक. Semantics is nothing as what? It meanings we know that both browsers as well as a developer. मतलब कि उसका कुछ तो मीनिंग है और वो मीनिंग समझ में आता है आपके ब्राउज़र को और आपके डेवलपर को. दैट इज़ नथिंग एज योर सिमेंटिक. जो पुराने वाले थे वो सिर्फ वहाँ पे टैग थे और हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता था कि ये है, ये हेडर है, ये फुटर है, नेविगेशन है और साइड है, वो है. ओके, तो पुराने वाले कैसे थे, अभी उसके ऊपर जाते हैं. फिर पुराने के ऊपर हमने नए वाले कैसे रिप्रेजेंट किए वो हमें देखना है. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ. अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी थी यहाँ पे, तो नॉर्मली हर एक वेबसाइट का एक खुद का एक टेम्पलेट होता है, उसका खुद का एक फॉर्मेट होता है. नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 90% सारे वेबसाइट का एक टेम्पलेट होता है, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ. ओके, एक टेम्पलेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये होता है उसका वेब पेज, उसे हम बोलते हैं कंटेनर. ओके, उस कंटेनर के बीच में हमें होता है एक हेडर, होता है यहाँ पे एक हेडर. ओके, उस हेडर के नीचे यहाँ पे होता है एक मेनू, बोलता है हम इसे मेनू होता है. ओके, और नेविगेशन भी बोलते हैं हम इसे. तो नेविगेशन में ड्रॉप डाउन भी होता है. ओके, ड्रॉप डाउन मतलब क्या कि एक के नीचे एक नाम, जैसे मेरा माउस ऊपर जाएगा उसके ऊपर नेविगेशन के ऊपर, तो नीचे आपको स्लाइडर मिलेगा, 1 बाय 1 एक नाम मिलेंगे आपको. ओके, उसे हम मेनू भी बोल सकते हैं और नेविगेशन भी बोल सकते हैं. उसके बाद उसका जो मिडल सेक्शन होता है वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं. कोई लोग उसे एक लेफ़्ट बनाते हैं यहाँ पे, और कोई लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे राइट बनाते हैं. लेफ़्ट में कम जगह छोड़ते हैं, राइट में ज़्यादा जगह होता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट होता है. बस बाय डिफ़ॉल्ट हमें 90% और 80% यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं कि यहाँ पे एक सेक्शन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा सेक्शन होता है. ओके, उस सेक्शन के बीच में आपको डेटा डालना पड़ता है. उसके बाद उसके नीचे होता है यहाँ पे फूटर होता है. ओके, तो फूटर के बीच में
हम जो भी रिगार्डिंग वेबसाइट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है हम यहाँ पे नीचे डाल देते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास तो एक ही टैग था और उस टैग में हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता था कि ये हेडर है, ये नेविगेशन है, ये लेफ्ट बार है, ये राइट बार है, फिर ये फूटर है। ओके, जैसे कि मेरे पास एक सपोज मैं यहाँ पे ड्यू लिखता हूँ, ड्यू ये मेरा टैग है और उसका आईडी में लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज नाम था उसका हेडर। ओके, इसका नाम है, सपोज मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, ड्यू स्पेस आईडी एट्रीब्यूट और यहाँ पे हेडर। ओके, उसका मैंने ऐसा नाम दिया हेडर और उसको मैंने ऐसे ओपन किया और उसको उसके बीच में क्लोज कर दिया। तो हेडर को कुछ आपको देना है, हेडर का नाम सपोज मुझे देना था AC पाटिल, सो AC पाटिल। ओके, और उसके साइड में मुझे एक लोगो देना था, उसका इमेज मैंने डाल दिया इमेज टैग के थ्रू। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक हेडर बना दिया, हेडर के बीच में कंटेंट भी डाल दिया और हेडर को मैं क्या करूँगा, स्टाइलिंग दे दूंगा यूजिंग CSS से। तो मैं स्टाइलिंग कैसे दूंगा, आईडी मेरा अगर मेरा हेडर है तो #h करके उसके बीच में मैंने बोल दिया कि मेरा जो हेडर है वो ऊपर रहेगा, तो उसका मार्जिन और वो सब कुछ मैं सेट कर दूंगा वहाँ पे। तो क्या हो गया कि हेडर के लिए ड्यू ले लूँगा। फिर अगेन मेरे पास दूसरा सेक्शन है, उसका नाम है ड्यू, आईडी था मेरा, कौन सा था वो, मेनू था। तो मेनू में मैं क्या कर दूंगा, फिर से वही जो मुझे मेनू बनाना था, मुझे होम बनाना है, फिर मुझे अबाउट अस बनाना है, फिर मुझे कॉन्टैक्ट अस बनाना है। तो ये सारा मैं ड्यू के बीच में डाल देता था और ड्यू को मैं यहाँ पे क्लोज करके देता था। तो ये सारा क्या हो गया कि ड्यू के बीच में मैं हेडर भी ले रहा हूँ, ड्यू के बीच में मैं मेनू भी ले रहा हूँ, ड्यू के बीच में मैं लेफ्ट भी ले रहा हूँ, ड्यू के बीच में मैं राइट भी ले रहा हूँ, फुटर भी ले रहा हूँ। और स्टाइलिंग के थ्रू मैं इसको स्टाइल करके उस ड्यू की साइज और ड्यू का जो पोजीशन है वो सेट करता था। तो क्या हो गया, फिर वो एसईओ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अभी एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि कोई ब्राउज़र के ऊपर या कोई सर्च इंजन के ऊपर अगर एक ही टैग के बीच में सारे आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो वो क्रॉलिंग करने के टाइम पे वो कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके, क्रॉलिंग मतलब क्या, उसे ढूंढने में कि फुटर हेडर या पर्टिकुलर वेबसाइट का हेडर क्या है, पर्टिकुलर वेबसाइट का फुटर क्या है, पर्टिकुलर वेबसाइट का मेनू क्या है, वो ढूंढने के लिए बहुत सारा तकलीफ होता था क्योंकि वो अंडर एक ही ड्यू के और एक ही टैग के बीच में है। तो इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या किया कि हेडर के लिए खुद का एक टैग बना दिया उन्होंने, फिर मेनू के लिए और नेविगेशन के लिए उन्होंने खुद का एक टैग बना दिया, फिर आपका जो लेफ्ट और राइट था उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन बना दिया यहाँ पे। ओके, उस सेक्शन में मैंने क्या किया, उस सेक्शन के बीच में मेरे पास आर्टिकल है। ओके, उस आर्टिकल के बीच में मैं आर्टिकल का नाम लिख दूंगा, जो भी कुछ होगा, कॉलेज ऐसा मेरा नाम है, थीम है, कॉलेज का आर्टिकल का नाम है। और उसके बीच में मैंने क्या किया, वहाँ पे आर्टिकल लिख दिया। तो आर्टिकल लिख दिया तो कॉलेज का यहाँ पे फ़ोटो होगा और साइड में यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ये सब, ये वाला जो मैं है फ़ोटो और ये साइड इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ साइड टैग से मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कौन सा टैग रहेगा, अ साइड नाम का टैग रहेगा। ओके, यहाँ पे अ साइड टैग में मैं पहले इमेज डाल दूंगा, इमेज डालने के बाद मेरा वहाँ पे पैराग्राफ टैग से मैं डेटा डाल दूंगा। ओके, ये सारा मैं फीचर यहाँ पे कर सकता था, कर सकता हूँ इन HTML5 में। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सेक्शन, अगर मेरे पास स्पोर्ट्स का सेक्शन है, ओके, तो स्पोर्ट्स के सेक्शन में मेरे पास एक आर्टिकल नहीं है, स्पोर्ट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस सेक्शन के बीच में छोटे छोटे सेक्शन बनाऊँगा। यहाँ पे एक सेक्शन है, यहाँ पे दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे तीसरा सेक्शन है। उस सेक्शन का जो आर्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा, वहाँ पे इसकी आर्टिकल नाम का टैग रहेगा, यहाँ पे आर्टिकल। ओके, और वहाँ पे उस आर्टिकल टैग के बीच में मैं आर्टिकल का नाम दे दूंगा, फिर असाइड टैग से मैं उसका इन्फॉर्मेशन भर दूंगा यहाँ के। इस तरह के मेरे पास टैग रहेंगे, यहाँ पे सेक्शन टैग रहेगा। तो पहले क्या होता था, पहले मैं क्या करता था कि ड्यू टैग लेता था यहाँ पे। ओके, और ड्यू टैग के बीच में ये ड्यू टैग है
और ड्यू टैग के बीच में और एक ड्यू टैग लेता था यहाँ पे दूसरा ड्यू रहेगा ड्यू टू, ओके, उसमें नाम डालता था कुछ भी। उसके बाद तीसरा ड्यू लेता था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ड्यू 3 रहेगा और उस ड्यू के बीच में 3 के बीच में मैं सारी इन्फॉर्मेशन इमेज वगैरह डाल देता था, ओके। तो इमेज यहाँ पे ड्यू के बीच में मैं क्या करूँगा, इमेज का टैग डाल दूंगा, फिर पैराग्राफ डाल दूंगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक ही ड्यू के बीच में हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी मेक द सेपरेट टैग्स की सेक्शन टैग रहेगा, आर्टिकल टैग रहेगा, फिर उसके बाद असाइड टैग रहेगा। उस टैग के थ्रू मैं क्या करूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन भर दूंगा। जब एसीओ का क्रॉलिंग होगा या एसीओ उस वेबसाइट का डेटा देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि हेडर इसका सेपरेट है, फुटर इसका सेपरेट है, फिर उसके जो आर्टिकल लिखे उसने आर्टिकल टैग में लिखे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसे ईजिली मिल जाएंगी और वो सर्च इंजन के लिए वहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, वहाँ पे दिखा देगा कि ये वेबसाइट का ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा क्रॉलिंग के लिए उन्होंने सारे HTML5 टैग को सेपरेट बना दिए, ओके। तो मैंने जो अभी तक बताए कौन से टैग बताए आपको रेडीमेड कि HTML5 में है। सबसे पहले आपके पास है हेडर टैग, यहाँ पे हेडर टैग है, ओके। दूसरा टैग है आपके पास नेविगेशन टैग है, ओके। तीसरा टैग है आपके पास यहाँ पे लेफ्ट और राइट करने की जगह पे मेरा एक सेक्शन रहेगा, यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा और उस सेक्शन के बीच में नंबर ऑफ आर्टिकल्स रहेंगे, ओके। और उस आर्टिकल में आप असाइड के थ्रू और असाइड टैग के थ्रू आप क्या करोगे, आपका डेटा भर दोगे। फिर नीचे रहेगा आपका फुटर टैग, ओके। ये सारे आपके सिमेंटिक टैग हो गए। मतलब कि सिमेंटिक मतलब क्या, इट्स अ मीनिंग टू नो योर ब्राउजर्स एज वेल एज योर डेवलपर। उसका मीनिंग आपके ब्राउजर को भी समझ में आए और आपके डेवलपर को भी समझ में आए, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर सिमेंटिक, ओके। ये तो खाली 4-5 सिमेंटिक टैग हो गए, ऐसे बहुत सारे टैग हैं उन्होंने दिए हैं, ओके। कौन से हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कम, ओके। सो आर्टिकल टैग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आर्टिकल टैग में क्या होता है, ओके। फिर असाइड टैग में क्या होता है वो भी आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्स। तो डिटेल्स के बीच में हम प्रैक्टिकली देखने से पहले हम इसके ऊपर जाते हैं, ओके। अगर मेरे पास कुछ समरी है, ओके, समरी भी एक टैग है आपके पास इन HTML5 में, ओके। एक समरी नाम का टैग है, ओके। और उस समरी में मैं क्या बोल दूंगा कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग, क्या बोल दूंगा, इंटरनेट प्रोग्रामिंग मैं बोल दूंगा और यहाँ पे समरी को क्लोज कर दूंगा, ओके। यहाँ पे मैंने समरी को क्लोज कर दिया। बट ये किसके अंडर आएगा, ये डिटेल्स के अंडर आएगा, ओके। डिटेल्स मैंने ओपन किया, यहाँ पे डिटेल्स को मैंने क्लोज कर दिया। मतलब डिटेल्स के बीच में समरी टैग, ओके, और समरी में मैंने लिख दिया इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग मुझे कैसे दिखेगा, यहाँ पे एक मार्क होगा, ओके, यहाँ पे एक ऐसा मार्क होगा और यहाँ पे होगा इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद मुझे जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बीच में इंफॉर्मेशन था, ओके, वो सारा यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तब तक जब तक कब तक दिखाई देगा, जब तक आपने उसको क्लिक नहीं किया तब तक वो दिखाई नहीं देगा, वो हाइड रहेगा, ओके। डिटेल्स क्या रहेगा, हाइड रहेगा। देखते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे करना है, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र के एडिटर के ऊपर और यहाँ पे लिखता हूँ HTML5 का टेम्पलेट ले लेता हूँ। यहाँ पे डॉक टाइप ऑलरेडी आ जाता है आपका, ओके। यहाँ पे ये वाला HTML डॉक टाइप आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला कौन सा था मेरा, फंडामेंटल मेटा कैरेक्टर सेट। यहाँ पे मैंने लिख दिया UTF-8, ओके, और उसको मैंने क्लोज कर दिया स्लैश के थ्रू, ओके। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे देखना था डिटेल्स के बारे में, ओके। तो डिटेल्स को मुझे टैग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिटेल यहाँ पे है ऑलरेडी, ओके, और डिटेल्स मैंने क्लोज कर दिया। तो उसके बीच में मुझे क्या लेना था, यहाँ पे मुझे लेना था समरी टैग, ओके। मैं क्या करता हूँ, समरी लेता हूँ, देखो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो समरी टैग मैंने ओपन किया, क्लोज किया, ओके। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी
यहाँ पे लिख दूंगा कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग मैंने लिख दिया। ओके, और मैं उसे सेव कर देता हूँ इस फाइल को। सपोज मैं उसे कहाँ पे सेव करना है मुझे, डाउनलोड, और यहाँ पे प्रैक्टिस में मुझे देखना है IPT टेस्ट 8 को मुझे सेव करके देना है। ओके, और उसके बीच में समरी के नीचे में क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा, उस पैराग्राफ में सारा डेटा मैं वहाँ पे फिल कर दूँगा। अभी मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ में मैंने क्या किया, समरी के नीचे कहाँ पे, समरी टैग के क्लोज के बाद मैंने क्या किया, पैराग्राफ टैग ले लिया यहाँ पे। ओके, और उसे यहाँ पे क्लोज कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो उसके बीच में मेरे पास क्या है, मैंने लिखा है कि दिस इज इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड ऑल अदर लैंग्वेज लाइक HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, AJAX, JSON, XML, SSL, PHP एंड PHP डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। जब मैं उसे रन करूँगा, ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ पहले और उसे रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनेट प्रोग्राम के ऊपर एक एरो, ये मार्क दिख रहा है आपको। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओके, तो क्या हो गया, ये सारा डिटेल्स मुझे मिल गया उस समरी के रिगार्डिंग। ओके, तो ये वाला आपका हो गया डिटेल्स टैग के बारे में, जो कि HTML5 में है, उसे हम बोलेंगे सिमेंटिक भी बोलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे था आपका समरी टैग, नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपका समरी टैग था। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फिगर, कैप्शन और फिगर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिगर दिखाते थे। ओके, जैसे कि मेरे पास एक इमेज था, उस इमेज के ऊपर जब मैं माउस लेके जाता था यहाँ पे, ओके, तो वहाँ पे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिलती थी। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वांट टू व्हाट, जैसे मैं इमेज दिखाऊंगा तो इमेज के नीचे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इमेज का क्या, इमेज के नीचे इमेज का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, यूजिंग फिगर कैप्शन के थ्रू। इमेज कैप्शन का टैग है मेरे पास, उसके थ्रू मुझे वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, फिगर कैप्शन मेरे पास एक नया एलिमेंट है और टैग है, जो कि वो HTML5 में है, उसका नाम है फिगर कैप्शन, और वो सिमेंटिक भी उसे बोलते हैं। तो फिगर कैसे लेना है वो भी प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। ओके, सपोज इसके नीचे ही ले लेता हूँ मैं, इसके नीचे आया, मैंने सबसे पहले क्या किया, फिगर नाम का जो भी मेरा टैग था मैंने ले लिया। उसके बीच में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज टैग लेता हूँ। ओके, और इमेज, ओके, यहाँ पे ओपन किया, क्लोज किया। उसके बीच में मैं क्या कर देता हूँ कि इमेज का जो भी मेरे पास सोर्स है, सोर्स मतलब क्या, उसका पाथ। ओके, मेरे पास एक सपोज इमेज है, देखते हैं हम कहाँ पे है, डाउनलोड और प्रैक्टिस में है। ओके, डाउनलोड और प्रैक्टिस में है, कहाँ पे हमें देखना है इमेज। ओके, सो यहाँ पे मेरा इमेज का नाम है IPT-test.jpg। ओके, IPT टेस्ट नाम डाल दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं IPT टेस्ट नाम डाल देता हूँ .jpg। ओके, और उसको अल्ट कर देता हूँ। अल्ट मतलब क्या, जैसे माउस जाएगा उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन आएगा, टेस्ट इमेज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, अंडरस्कोर करके इमेज। ओके, और उसकी हाइट और विड्थ भी डिसाइड कर देता हूँ। उसकी विड्थ मैंने ले ली सपोज 100 पिक्सल, यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता हूँ, पिक्सल। ओके, और उसकी जो हाइट है वो भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। ओके,
तो यहाँ पे पहले मैं रन करके देखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। ओके, फिगर के बीच में इमेज ले लिया, उसको मैंने सेव कर दिया और रन किया। यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डिटेल का क्लोज टैग है वो कहाँ पे डाल दिया, फिगर के बाद डाल दिया। तो ये डिटेल वाला मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा आपके पैराग्राफ के बाद यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये पैराग्राफ के बाद मुझे डालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, हम फिर से डाल के देखते हैं पैराग्राफ के बाद डिटेल वाला और चेक करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ को लेके आता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे डिटेल्स का जो टैग है वो डाल देता हूँ, डाल दिया। इसको सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ और देखते हैं। यस, ओके, यहाँ पे इमेज वाला जो भी था टैग वो आ गया। अभी इसके नीचे मुझे क्या चाहिए था, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर कैप्शन नाम का जो भी मेरे पास नया वाला टैग था उसका बारे में हम बोल रहे थे, वही डालना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे फिगर जो भी कैप्शन नेम है, फिग कैप्शन, और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दिया। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, दिस इज टेस्ट इमेज। ओके, मैं उसे सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ और देखता हूँ व्हाट, दिस इज द टेस्ट इमेज मेरे पास आ गया। ओके, तो इस तरह से मेरे पास एक फिगर कैप्शन नाम का भी नया सिमेंटिक एलिमेंट्स है जो कि क्रॉलिंग के लिए काम आता है। कोई भी इमेज है आपके वेबसाइट्स में, उसका नाम क्या है, उस इमेज क्या है, वो सारे डिटेल्स वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करता है। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस फुटर, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द फुटर। देन हेडर, ऑलरेडी वी डिस्कस द मेन टैग। अभी यहाँ पे मेन टैग नथिंग एज योर कंटेनर टैग। ओके, अगर मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया था इसका कि मेरे पास जो वेबसाइट कोई भी बनती है यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे पास होता है कंटेनर। ओके, और उस कंटेनर के बीच में अलग अलग टैग लेता हूँ मैं, पैराग्राफ टैग, ए टैग, ओके, फिर मेरे पास डिव टैग, फिर हेडर, फुटर, जितने भी टैग्स है मेरे सारे टैग्स में इसके अंडर लूँगा। तो मेन टैग के ऊपर ही आपका सारे टैग्स रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट रहेगा आपका मार्क, जो भी टैग है मार्क टैग। मतलब क्या कि कोई भी एक टेक्स्ट को मुझे अगर मार्क करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे और बोलता हूँ कि यही मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कोई डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला पैराग्राफ टैग है मेरे पास समरी के बाद। ओके, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरनेट प्रोग्रामिंग को मुझे मार्क करना है या मुझे उसको हाईलाइटेड करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्क टैग से येलो कलर आता है। कौन सा, येलो कलर। ओके, तो कैसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्क टैग यूज़ करूँगा और यहाँ पे उसको क्लोज कर देता हूँ। मैंने उसको सेव किया, रन किया। ओके, जैसे मैं डिटेल में जाऊँगा, ओके, तो मैं क्या मुझे मिल गया, यहाँ पे ये वाला इंटरनेट प्रोग्रामिंग हाईलाइटेड मिल गया। ओके, सो दिस इज द अनदर टैग वी हैव। देन मैं नेक्स्ट वाले टैग में जाऊँगा, नेविगेशन। सो ऑलरेडी यू नो द मेनू और नेविगेशन। देन सेक्शन, ऑलरेडी यू हैव टू नो। देन समरी, समरी का भी मैंने लिया था एग्जाम्पल। और टाइम टैग, तो टाइम टैग का इतना यूज़ नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो टाइम टैग से टाइम आपको समझ में आता है, या टाइम डालने से आपको ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट टाइम टैग से क्या होता है कि क्रॉलिंग के लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी टाइमिंग रिगार्डिंग एप्लीकेशन होगा, तो फटाक से उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको समझ में आएगा और अकॉर्डिंग वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो टाइम टैग से क्या होगा, टाइम टैग ओपन किया, क्लोज किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 to 10 o'clock और 10 AM ऐसे। ओके, और सेव किया, उसको रन किया, यहाँ पे 10 AM यहाँ पे आ गया। तो टाइम टैग का ओनली यूज़ फॉर द क्रॉलिंग यूज़ के लिए है, ऐसा कुछ उसका अलग सा डायनामिक या ऐसा कुछ अलग
टैग का यूज नहीं है. ओके, दैट इज अबाउट योर दी सिमेंटिक एलिमेंट्स. और ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स है HTML5 में. इनलाइन एलिमेंट्स है जो कि डिस्क जो भी है आपकी डिस्क, उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आता है कि डिस्क कितना भरा है, कितना बाकी है, कितना MB का उसे डेटा लेना है, तो फिर वो फुल होगा. ओके, दैट रिगार्डिंग वी हैव टू द टैग वी हैव. जैसे कि लोकल डिस्क अगर विंडोज़ में आप देखते हैं तो आपके पास लोकल ड्राइव C होता है, फिर D होता है, फिर E होता है. तो उसके जैसे आप उसको ड्राइव को देखते हैं तो उसके साइड में आपके पास एक प्रोग्रेस वाला आपको दिखाई देता है, या आपको मार्क वाला GUI दिखाई देता है. जैसे कि C:, उसके बाद वो कितना भरा है वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है. जैसे कि ये 180 का बनाया आपने, तो यहाँ पे वो होता है 60 GB वहाँ पे भरा है. ओके, तो ये सारा मैं कर सकता हूँ मार्क टैग के थ्रू. ओके, और प्रोग्रेस के थ्रू भी कर सकता हूँ. ये दोनों भी टैग वहाँ पे यूज़ होते हैं. ओके, देन उसके बाद आपके दिस ये जो मार्क और प्रोग्रेस टैग है उसे हम बोलेंगे इनलाइन टैग. क्या बोलेंगे? इनलाइन टैग. ओके, तो नेक्स्ट वाला हो गया आपके फिर इनपुट टैग. तो इनपुट टैग तो आपको मालूम ही है ऑलरेडी. इनपुट टैग कौन से टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए नए ईमेल. ओके, एक नया है. फिर यहाँ पे उन्होंने बोला एक कलर. ओके, ऐसे 2-3 है और, बट बाय एग्जांपल हम जब देखेंगे वो सारे हम करेंगे. प्रैक्टिस पर्पस हम वो सारे एलिमेंट नए वो करेंगे. बट ये जो है वो इम्पोर्टेंस है सारे, ईमेल और कलर. ओके, तो कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, हम देखेंगे प्रैक्टिकली. Okay, so this is about the inline and then input new HTML5 elements. So today that enough for the discussions about the chapter number 4. That topic is fundamental syntax and the semantic elements. तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे चैप्टर जब ओवर होगा उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स लेंगे 1 by 1, और एक वेबसाइट का थीम और वेबसाइट का टेम्पलेट हम एक्सप्लेन करेंगे और उसे हम बनाएंगे प्रैक्टिकली. ओके, सो टुडे दैट वीडियो लेक्चर विच इज़ इनफ. एंड who wants students or who wants student like my video. Okay, so please subscribe, like and comment. If you have any query, so you can make the comment on there. Okay, so